Are you singles? Content creation income enough to fund your travels? How many sponsorships do you usually get in a year? When will we get to see international traveling content? What's up guys, it's Grishma and welcome to my channel. So आज के इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ एक Q&A वीडियो यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो। मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे लोग मुझे इस चैनल पे मेरे ट्रैवल व्लॉग्स और आइटिनरीज और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के द्वारा जानते हैं, बट मुझे एज अ पर्सन नहीं जानते हैं। एंड ऑल्सो आई थिंक दिस इज अ perfect time to make this video because we are at 60,000 subscribers. It's such a big and huge number and I'm so grateful for each one of you for subscribing to my channel and constantly showing your support. कुछ दिन पहले अपने YouTube के community post पे मैंने एक post डाला था asking you guys to ask questions to me and मुझे बहुत सारे questions आए, so I'm gonna answer them one by one. But before that मुझे बहुत सारे common questions आते हैं जो हर टाइम मुझे आते रहते हैं, so I'm gonna quickly answer that first. So the number one question that I usually get asked is from where I am. So I am from Mumbai, Maharashtra. I lived here all my life. And the second question that I get asked most frequently is कि मैं YouTube part time कर रही हूँ या फिर full time. So YouTube में अभी currently full time कर रही हूँ from March 2024. उसके पहले मैं 3 साल जॉब करती थी and उसके बाद मैंने सोचा to give YouTube my full energy and focus because this is what I love doing. So I quit my job in March and उसके बाद मैंने YouTube full time करना शुरू किया है. So I hope this answers the commonly asked questions. So अभी चलते हैं कम्युनिटी पोस्ट पे जो सारे क्वेश्चंस आए. लेट्स गेट स्टार्टेड. आई एम सुपर एक्साइटेड. ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन मुझे दिख रहा है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू मैनेज योर मनी व्हाइल ट्रैवलिंग? Do you run any business on the side or is content creation income enough to fund your travels? So honestly, I do not know how to manage money. I'm still learning it and also travel is expensive, but yes, over the time I have learned some travel hacking. जैसे मुझे free flights वगैरह मिलते हैं and free hotels वगैरह मिलते हैं, वो सब मैंने सीखा है over the years. And also I've started understanding money more properly, investments कैसे करने के हैं. तो I'm slowly learning but I'm still in the process and I'm not really that good at the moment. And उसका second question उसी में था is that कोई business वगैरह है कि नहीं side में. So currently I do not have any business or side income जो है. फुल टाइम अभी कंटेंट क्रिएशन, ट्रैवल कंटेंट क्रिएशन ही है, बट इन द फ्यूचर आई वुड लव टू हैव अ बिजनेस. एंड करेंटली मेरे पास इतना बैंडविड्थ नहीं है इतना इन्वेस्ट करने को, एक बिजनेस स्टार्ट करने को. होपफुली फ्यूचर में एक बिजनेस भी हो मेरा जो साइड में चलता रहे. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्पॉन्सरशिप्स डू यू यूजुअली गेट इन अ ईयर? एंड वेरी ऑनेस्टली नॉट मच, विच इज वेरी सैड, बट होपफुली इन द फ्यूचर और आए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स योर ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन? सो ये क्वेश्चन मैंने अपने बहुत बार इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी बोला है. It's Greece. I would love to travel to Greece one day, watch a sunset from Santorini, and वहाँ पे Athens भी है, which is a historic place जो भी मुझे visit करना है. तो yeah, that's my dream destination. Hopefully I get to travel it really soon. मतलब that would be really nice. Okay, so the next question is what's your one secret travel fantasy you have never told your followers? जैसे मैंने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है, but if I think about it right now, it would mostly be going on a vacation and not filming or taking any photos and videos of that place. I know मुझे वो बहुत difficult होगा because I cannot sit idle and relax. मुझे काम करते रहना अच्छा लगता है. One day I would love to do that and learn how to relax and not work always. So yeah, I think that would be a travel fantasy. The next question is, are you singles? So this question I get asked a lot. मेरे DMs में भी आते हैं, मेरे comment section में भी आते हैं. And the answer to that is wherever I am currently in my life at this point of time, I'm happy. So moving on to the next set of questions. It's from Ranjan Shah. He asked from which state do you belong? So I am born and brought up in Mumbai, Maharashtra. But अगर मेरा गाँव की बारे में बात करें तो वो मैंगलोर, कर्नाटका है. So I speak Tulu and Malayali language at home. Okay, so the next question is from Kritika. She asked, how do you manage to feel safe, especially at night in hotel room, solo, or you always stay in hostels? Okay, so whenever I'm traveling solo, I really prefer hostels क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाए जाते हैं, ग्रुप टूर्स पे लेके जाते हैं एंड कोई ना कोई हॉस्टल में मिल जाता है विद विच यू कैन ट्रैवल एंड शेयर द कॉस्ट, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बट बहुत सारे लोकेशंस पे हॉस्टल्स नहीं होता है, सो एट दैट टाइम आई हैव टू बुक अ रूम एट अ होटल. एंड मोस्टली व्हेन आई एम ट्रैवलिंग सोलो आई मेक श्योर टू कम बैक टू द रूम और द हॉस्टल दैट आई एम स्टेइंग बिफोर लाइक 8 o'clock, सो दैट मैं खाना भी जल्दी खा के और मैं 9-10 बजे तक सो जाती हूँ. सो आई डोंट स्टे अप लेट व्हेन आई एम ट्रैवलिंग सोलो, विच इज़ लाइक नंबर 1 रूल. मतलब जितना हो सके उतना ट्रैवल करके रूम में आ जाओ, आराम करो, सो जाओ, नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग निकलो. रात को मैं नहीं घूमती हूँ. सो आई थिंक दैट्स हाउ आई टेक केयर. बट
Yeah, and also check the reviews and read the reviews of every place that you are booking before traveling solo. Like hotels ही क्यों ना, hostels के भी review read करो, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है and before you book your hostel and before you're traveling solo to that place. Okay, moving on to the next question. It's when will we get to see international traveling content? उसके लिए मैं बोलूँगी आप पहले मुझे Instagram में फॉलो करो, बिकॉज वहाँ पे सबसे पहले अपडेट्स आएंगे, स्टोरीज वगैरह मैं वहाँ पे पहले डालूंगी. सो आई एम प्लानिंग समथिंग रियली सून विच आई एम सो एक्साइटेड. यू गेट टू नो रियली सून. सो फॉलो मी ऑन Instagram right now. It's @Grishma Udyawar. Naval Kumar Shukla asks, what's your favorite color? It's white. I love white. Everything in my room is also white. I have a white phone and I like the clean and elegance of white color. So yeah, it's very basic but white पसंद है मुझे. Okay, moving on. Next comment में 7 questions है which I'm gonna answer one by one. So Prathamesh asks, what's a moment during your travels that completely changed how you see yourself as a woman? So last year April March के time पे I went solo to Himachal Pradesh. It was my longest solo trip ever. Around 20 days that I spent solo traveling in the mountains, and it was my very first time doing such a long duration of solo trip as well. So I was very excited, at the same time was very nervous. तो उस ट्रिप में मैंने इतना ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया है टू गो फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, एंड 6-6, 7-7, 8-8 घंटा तक मैंने ट्रैवल किया है बस में, बिकॉज मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ तो प्राइवेट कार करना एक तो एक्सपेंसिव होगा, सेकेंड मुझे इतना सेफ नहीं लगता व्हेन यू आर ट्रैवलिंग सोलो. सो मैंने बस से ट्रैवल किया था हर जगह पे. तो बस को फिगर आउट करना, वहाँ पे जाके बस चेंज भी करना था, डायरेक्ट बसेस अवेलेबल नहीं होती थी. एंड द पीपल ऑफ हिमाचल वर सो स्वीट एंड सो नाइस. वो लोग सब हेल्प भी कर रहे थे. प्लस मेरे पास सूटकेस भी था बड़ा सा, तो उसे ऊपर बस में डालना वो सब भी मुश्किल हो रहा था. तो पीपल वर रियली काइंड टू हेल्प मी आउट देयर. सो वो जो ट्रिप था वॉज रियली स्पेशल टू मी एंड इट मेड मी लर्न सो मच एंड मेड मी अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंट एज वेल while traveling solo. So that was a trip that changed my confidence level while traveling solo. So the next question is, what's one stereotype that people make about solo female travelers that you have completely shattered through your experiences? First of all, people usually think that women cannot travel solo, and second thing is that they should not travel solo and only travel once they get married with their partner and stuff like that, which I think is completely wrong. सबको अपनी ज़िंदगी में एक बार तो सोलो ट्रैवल करना ही चाहिए, भले ही सबको पसंद ना आए. अगर तुम खुद से नहीं करोगे तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हें पसंद आएगा कि नहीं आएगा. किसी को नहीं भी पसंद आ सकता, विच इज़ कम्प्लीटली ओके. बट अगर तुम्हें पसंद आए ट्रैवल करना सोलो, तो यू कैन लर्न सो मच अबाउट योर सेल्फ. यू विल अंडरस्टैंड हाउ इंडिपेंडेंट यू कैन बी, हाउ यू कैन मैनेज थिंग्स बाय योर सेल्फ एंड हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एज वेल. तो सोलो ट्रैवल हैज़ कम्प्लीटली चेंज माई लाइफ. मतलब पहले मुझे जो लोग जानते थे वो ऐसी लड़की को जानते थे जो बिल्कुल बात नहीं करती थी, किसी से बात नहीं करती थी. बट नाउ व्हेन आई ट्रैवल सोलो टू सो मेनी प्लेसेस, इट हैज़ कम्प्लीटली चेंज मी. आई एम सो मच मोर कॉन्फिडेंट. आई कैन टॉक टू people right now, and it has completely changed who I am as a person. So that's a stereotype that women cannot travel solo. You can, you should, and you must travel solo at least once in your life. Has there ever been a moment while filming where you thought, I wish I could just experience this without the camera? Like always, हमेशा ये होता है कि हमारी दुनिया इतनी ज़्यादा सुंदर है, इतने सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस है, वहाँ जाके ऐसा लगता है कि बस इस खूबसूरती को देखूँ, इसे बस इधर ही बैठ जाओ, ये सनसेट देख लूँ या फिर ये बीच के बाजू में बैठ लूँ. मतलब हर टाइम होता है ये, बट एट द सेम टाइम दिस इज माई वर्क एंड आई हैव टू गेट थिंग्स डन. इफ योर सब्सक्राइबर्स कुड सी ओनली वन वीडियो फ्रॉम योर एंटायर चैनल टू अंडरस्टैंड you, which one would you pick and why? So I've never thought about this honestly, but if I think about it right now, I would say that you can watch Wayanad in Kerala and Kanchipuram in Tamil Nadu. Both of these videos are well made video according to my opinion, and इसमें जो visuals है और जो editing style है वो मैंने थोड़ा सा change किया है. So that's the 2 video that I would recommend if you want to know more about my channel, कि किस तरीके से मैं informative videos बनाती हूँ. The 5th question is, have you ever changed your travel plans on a gut feeling and it led to something unforgettable? There was this one time when I was solo traveling in Himachal. So मेरा पहला दिन था हिमाचल प्रदेश में जब मैं अमृतसर से हिमाचल जा रही थी, and the first location to cover in Himachal was Dalhousie. So मैं सोलो ट्रैवल कर रही थी, तो मेरा प्लान था कि मैं कोई ट्रैक वगैरह नहीं करूँगी, बिकॉज सोलो ट्रैवल में ट्रैक करना एज अ फीमेल इज़ अ बिट रिस्की इन माई ओपिनियन. सो मैं वो सब स्किप करने वाली थी. बट आई मेट 2 people on my bus journey from अमृतसर टू डलहौजी. दे वर ट्रैवलिंग टू द सेम लोकेशन एंड किसी तरीके से हमारी बात हो गई एंड हमारे ट्रैवल थॉट्स मिल गए. सो वी डिसाइडेड टू ट्रैवल टुगेदर द नेक्स्ट डे, एंड उस दिन हम गए थे एक प्लेस में जिसका नाम है देनकुंड पीक,
which is one of the most beautiful peaks in Dalhousie. It's also one of the highest peak in Dalhousie. वो जो ट्रैक था मतलब डिफ़िकल्ट नहीं था, बस हमें चलना था, बट बहुत ही लंबा चलना था एंड इतना खूबसूरत जगह है वो. द व्यूज़ ऑफ प्लेस वर स्पेक्टैक्युलर. ऐसा कुछ विजुअल्स मैंने नहीं देखा था. सो आई वाज सो एक्साइटेड दैट आई मेट सम पीपल एंड इट लेड टू सच ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस विच आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर. एंड आज भी वो लोग मेरे से टच में है. व्हाट्स अ कल्चर डिड नॉट एक्सपेक्ट टू कनेक्ट बट एंडेड अप फॉलिंग इन लव विद. सच बताओ तो मुझे सारे कल्चर्स को एक्सपीरियंस करने को बहुत अच्छा लगता है. उनके बारे में जानना पसंद है, उनके रिचुअल्स को जानना पसंद है. सो आई वुड नॉट से दैट देयर वाज़न्ट एनी कल्चर दैट आई वाज नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू कनेक्ट विद. हर कल्चर को एक्सपीरियंस करना मुझे काफ़ी पसंद है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू एवर फील पीपल अंडर एस्टिमेट हाउ हार्ड ट्रैवल कंटेंट क्रिएशन इज? येस, ऑलवेज. लोगों को लगता है इसका तो अच्छा है, ये बहुत घूमती है वगैरह, बट मुझे पता है कि बिहाइंड द सीन्स क्या क्या होता है. जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि ट्रैवल कंटेंट क्रिएशन इज एक्सपेंसिव, तो वो एक हर्डल आता है. उसके बाद देयर इज अ टोल ऑन योर हेल्थ एज वेल. बहुत सारा कॉन्स्टेंट ट्रैवल करते हैं, बाहर का खाना खाते हैं एंड इतनी थकावट वगैरह होती है, तो हेल्थ पे भी थोड़ा इफेक्ट आता है. आई विल शेयर एन एग्जांपल. मैं गोवा से मुंबई आ रही थी सोलो, ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन ऑल अलोन. तभी मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया था एंड ऑलमोस्ट 10 to 12 टाइम्स आई वाज गोइंग टू द बाथरूम. इट वाज द वर्स्ट थिंग एवर. मुझे भी नहीं पता है कि कैसे मैं घर आई हूँ. इट वाज सो बैड. मतलब उधर कुछ खा लिया था, उसकी वजह से हो गया. तो ये सारी चीज़ें ना दिखाई नहीं देती है, कोई बात नहीं करता है, बट बिहाइंड द सीन्स ये सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं. सो या आई थिंक पीपल डू अंडर एस्टिमेट ट्रैवल कंटेंट क्रिएशन. 279 कुमार आस्क्स योर यूट्यूब जर्नी. सो यूट्यूब मैंने बहुत साल पहले स्टार्ट किया था. इट वॉज अराउंड 7 years बैक व्हेन आई अपलोडेड माई फर्स्ट यूट्यूब वीडियो. इट वॉज फ्रॉम जादवगढ़ पुणे. एक रिजॉर्ट है, उसका वीडियो था. बस एक नॉर्मल सा वीडियो है जिसमें मैंने म्यूजिक डाल के वो पूरे विजुअल्स को दिखाया है एंड दैट वॉज माई फर्स्ट वीडियो दैट आई अपलोडेड. एंड उसके बाद भी मैं ज़्यादा अपलोड नहीं करती थी. जब मन हुआ तब करती थी, जब बाहर गई तब करती थी, बिकॉज आई वॉज करंटली स्टडिंग इन कॉलेज एट दैट टाइम व्हेन आई अपलोडेड माई फर्स्ट वीडियो. उसके बाद मैंने MBA किया तो वापस से पढ़ाई था. तभी जब मैंने जॉब किया, मेरा पहला जॉब, एंड तभी आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग मोर. ऑफ कोर्स तभी ऐसे आ गए पैसा ही पैसा होगा. तो तभी मैं सैटरडे संडे को बाहर जाती थी एंड वीक में रात को एडिट करती थी. ऐसा सब होता था. बट देन इवेंचुअली आई स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन यूट्यूब. मुझे रिजल्ट्स आने दिखाई दिए एंड मुझे समझा कि this is what I want to do, this is what I love doing, and hence I decided to quit my job and do this full time, and since then I'm doing it full time and I'm loving it. Any plans to visit all Maharashtra forts? यार अभी recently महाराष्ट्र के बहुत सारे forts को UNESCO heritage site घोषित किया गया है, which I'm so excited because if you have seen my previous videos you might know how much I love visiting these UNESCO World Heritage site. I am a nerd in that case. Historic places visit करना मुझे बहुत पसंद है and इतने सारे महाराष्ट्र के फोर्ट्स को भी ये अभी घोषित किया गया है, विच आई एम सुपर एक्साइटेड. सबसे पहले आई डू वांट टू विजिट रायगढ़ किला एंड शिवनेरी फोर्ट. सो लेट्स सी हाउ दैट गोज दिस ईयर, बट या आई वुड लव टू विजिट ऑल महाराष्ट्र's फोर्ट. ट्रैवल विद जॉय आस्क्ड who is your camera person? So if I'm traveling solo, it's me behind the cameras. अलग अलग जगह पे अपने कैमरा को फिक्स करके या फ़ोन को फिक्स करके वीडियोस निकालती हूँ, फ़ोटोज़ निकालती हूँ, या फिर कोई रैंडम इंसान मिलता है उनको बोलती हूँ कि मेरा फ़ोटो वीडियो निकाल दो. बहुत डर लगता है कि कई वो लोग मेरा फ़ोन लेके भाग ना जाए. एंड इफ़ आई एम नॉट ट्रैवलिंग सोलो, इट्स माई मॉम हू टेक्स फैंटास्टिक फोटोज़ एंड वीडियोज़. मैं जब भी बोलती हूँ कि ये मेरे मॉम ने दिया है, पीपल यूजुअली गेट शॉक कि इतना अच्छा फोटोज़ एंड वीडियोज़ कैसे निकाला है. सो आई एम लकी इन दैट केस दैट माई मॉम टेक्स फैंटास्टिक फोटोज़ एंड वीडियोज़. द प्लेस दैट यू नेवर वॉन्ट टू विजिट अगेन. मतलब इसके बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं है जो प्लेस मुझे वापस विजिट नहीं करना है, बट आई वुड नॉट वॉन्ट टू विजिट waterfalls because I'm scared of it, because something had happened in the past जिसकी वजह से मुझे वो डर है. तो आई वुड नॉट वॉन्ट टू विजिट वाटरफॉल्स. मोस्टली मुझे कमेंट्स में भी आते हैं कि ये जगह पे तुमने ये वाटरफॉल मिस कर दिया, वो कर दिया. मैं पर्पसली मिस करती हूँ क्योंकि मुझे विजिट नहीं करना है. ओके, सो लिव रोम एक्सप्लोर आस्क्स योर ब्लॉग्स आर वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड वेल मेड. डू यू एन्जॉय ट्रैवलिंग सोलो? येस, आई डू एन्जॉय ट्रैवलिंग सोलो. आई लव ट्रैवलिंग सोलो. इट गिव्स मी द फ्रीडम टू डू वट एवर आई वॉन्ट, मतलब हद में ऑफ कोर्स. एंड आई डू एन्जॉय ट्रैवलिंग सोलो. जब पहला सोलो ट्रिप लिया था दैट वॉज वेरी नर्व रैकिंग फॉर मी. मतलब मैं पौंडीचेरी गई थी ऑन माई फर्स्ट सोलो ट्रिप, तो इतना अच्छे से टिकट तो बुक कर लिया. जब मैं पहली बार वहाँ पे कोई कैफ़े में बैठी थी खाना खाने के लिए, मेरा लंच टाइम था, तब मैंने देखा कि सब लोग किसी न किसी के साथ आए हुए हैं. कोई फैमिली है, कोई कपल है, कोई फ्रेंड्स है, और मैं यहाँ पे अकेले बैठ के अपना खाना खा रही हूँ. सो दैट वॉज अ लिटिल वियर्ड एंड awkward for me, but after that I started enjoying my own company and being with myself. So उसके बाद तो
मज़ा आ गया, बट वो स्टार्टिंग का एक अजीब था, बट उसके बाद अच्छा लगा. सो आई लव एंजॉइंग ट्रैवलिंग सोलो. SS रियल लाइफ व्लॉग्स आस्क्ड एट व्हाट पॉइंट यू थॉट ऑफ स्टार्टिंग यूट्यूब. मैंने जैसे बताया कि मैं 7 साल पहले मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था एंड माई मॉम वॉज द पर्सन हु एक्चुअली टोल्ड मी टू स्टार्ट अपलोडिंग ऑन यूट्यूब. तो पहले बिफोर यूट्यूब ऑल्सो आई यूज टू मेक वीडियोज़, बट वो मैं खुद के लिए बनाती थी. जैसे ट्रैवल मोन्टाजेस वगैरह रहते थे विद क्लिप्स ऑफ द प्लेसेज एंड एडिंग साउंड एंड म्यूजिक टू इट, बट आई नेवर अपलोडेड देम. बट देन माई मॉम वन डे वॉज लाइक, व्हाई डोंट यू अपलोड इट टू यूट्यूब, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड एंड अपलोडेड माई फर्स्ट वीडियो 7 years back. What equipment do you use? So I make vlogs with my Sony Z7 I camera, which I'm currently filming on. Then I also use my iPhone 13 mini. This is the best phone ever. छोटा सा साइज है, मिनी है, and this is what I use for taking videos as well. And उसके साथ I also used a DJI Mic 2 जो ऑडियो के लिए यूज़ होता है. This is my recent purchase and it's a very good mic. I highly recommend. And I also want to get a drone. Let's hope and manifest it together, and hopefully we get a drone and have some really nice shots in the travel vlogs, because it will up the travel game for sure. How do you shoot? You can watch this video to know how I make my videos. It's super simple और ज़्यादा कुछ आपको ज़रूरत भी नहीं है. एक छोटा सा कैमरा स्टैंड ले लो, एक रिमोट शटर ले लो, that's it. That's how I make my videos. Super simple. Also solo travel friendly. Take us through challenge for a new YouTuber. मतलब अभी content creation का market इतना ज़्यादा saturated हो गया है. There are so many people who are creating content, different types of content. कोई लोगों का तो 1-2 वीडियो में वो लोग वायरल हो रहे हैं. कोई लोगों को बहुत सारे वीडियोस डालने पर फिर भी वायरल नहीं हो रहे हैं. सो दिस मार्केट एट द मोमेंट इज़ रियली वेरी सैचुरेटेड. एंड जब भी नए यूट्यूबर या नए कंटेंट क्रिएटर बनते हो, तभी हमें ऑडियंस भी नहीं पता होता कि हमारे ऑडियंस को क्या पसंद है, बिकॉज फॉलोवर्स ही नहीं होते. तो किस तरीके से वीडियो डालने का, कैसे एक्सपेरिमेंट करने का कुछ नहीं समझता है. बट इवेंचुअली ट्रायल एंड एरर करके ही वो आगे बढ़ा जा सकता है. द नंबर 1 गोल इज़ कि तुम्हें अपने माइंड में फिक्स करना है कि यही करना है मुझे, सो दैट यू नेवर लुक बैक एंड नेवर stop whenever there's a setback, and just move ahead and work on your success. The next set of questions is from Harvi Machi. The first question is, what was the reason behind being a travel influencer? यार बचपन में ना मैं बहुत सारे ऐसे ट्रैवल शोज देखती थी जो टीवी में आते थे. ट्रैवल एक्सपी एक चैनल था, देयर वाज हिस्ट्री टीवी, देयर वाज TLC एंड किंगफिशर गुड टाइम्स. वो सारे चैनल्स पे बहुत सारे ट्रैवल शोज आते थे एंड आई वाज रियली इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दोज वीडियोज़ कि कैसे वो लोग बनाते हैं, कैसे लोग एक जगह को दिखाते हैं, हाउ द एंकर और प्रेजेंटर प्रेजेंट्स और shows the place. It was really interesting for me and that really influenced me to do something like that of my own. उस टाइम पे YouTube was not a thing, तो तभी ऐसा एक शो करना कैसे पॉसिबल होगा वो समझ में नहीं आता था. बट टुडे एंड द पावर ऑफ यूट्यूब एनीवन कैन डू इट. अभी इतना आसान हो गया. जस्ट पिक अप योर कैमरा, गो टू अ प्लेस, शो द प्लेस एंड make a nice edit about it and upload it and see how your audience reacts. So yeah, अभी काफ़ी आसान हो गया, but that's what influenced me to begin with बचपन में. Your favorite places in Maharashtra? So महाराष्ट्र के हिल स्टेशन में मुझे महाबलेश्वर काफ़ी अच्छा लगा था. It was so nice to be there. मतलब the views are spectacular and the whole place is so nice and very tourist friendly also. तो मुझे वो अच्छा लगा था. मुझे पंढरपुर भी अच्छा लगा था, विच इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल प्लेस. विट्ठल भगवान का मंदिर है वहाँ पे बहुत ही बड़ा. वो जगह भी मुझे बहुत अच्छा लगा था. मतलब पहले ऐसा था कि मुझे मंदिर वगैरह विजिट करना पसंद नहीं था. मैं अपने पेरेंट्स को भी बोलती थी कि मंदिर क्यों लेके जा रहे हो. बट इवेंचुअली विद टाइम आई डू लव विजिटिंग दिस स्पिरिचुअल प्लेसेस एंड वहाँ पे दर्शन लेने को काफ़ी अच्छा लगा था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम चंद्रकांत देशमुख. ही आस्क्ड इंटरनेशनल ट्रिप, एनी प्लान्स? जैसे कि मैंने कहा, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो. you'll get the update about international trip very soon. Age, I'm not a type of person who would like to hide her age. I am very open about it. There's nothing to hide about it. I am 28 years old by the way. Mother tongue originally from, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा, I'm born and brought up in Mumbai, Maharashtra, but my mother tongue is Tulu and Malayali. That is because मेरा जो गाँव है वो मैंगलोर कर्नाटका में है. The next set of questions is from Blink TV. I'll quickly answer the 5 questions. Favorite solo trip? It has to be Pondicherry and Himachal Pradesh. Did you face any scams during travel? Yes, I did face a scam जो था booking का scam.
तो नैनीताल में एक होटल बुक करी थी मैं थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट. उसमें पता चला कि इट वॉज ऑल अ फेक वेबसाइट. द पीपल टॉकिंग टू मी ऑन द फोन वर ऑल फेक, ऑल स्कैमर्स, एंड आई लॉस्ट 80,000 रुपीज़ बाय बुकिंग दैट होटल. एंड एट द सेम टाइम ये मुझे अभी डर भी बैठ गया है कि कोई भी होटल बुकिंग करने को या किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने को पता नहीं कौन सा स्कैम है, क्या चल रहा है दुनिया में, पता नहीं. सो इट वॉज रियली स्कैरी. विच वॉज योर फर्स्ट स्पॉन्सर्ड ट्रिप / stay? So the first one was Rock Sport. So it was like years back. I had taken my family, my cousins, my mama, mummy, everyone to that place. वहाँ पे हमने बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ वगैरह किए, बहुत सारे स्पोर्ट्स वगैरह खेले. सो इट वॉज अ रियली फन एंड नाइस वन. सो आई रियली एन्जॉय दैट. दैट वॉज माई फर्स्ट स्पॉन्सर्ड ट्रिप. इफ नॉट अ ट्रैवल इन्फ्लुएंसर, व्हाट करियर वुड यू हैव चूजन? जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा, मैं 3 साल जॉब करी थी. तो MBA करने के बाद एंड आई वॉज इन द ई-कॉमर्स सेक्टर एंड आई रियली एन्जॉयड माई वर्क. सो इफ आई वॉज नॉट डूइंग यूट्यूब, आई वुड मोस्टली बी वर्किंग इन द सेम ई-कॉमर्स sector only because I really enjoyed my work and had no problems or issues with it whatsoever. Do you have a favorite travel channel? Yes, I do. I really enjoy watching 2 channels. One is Visa to Explore. Mr. Harish Bali makes really nice videos. And the next travel channel I would say is Tanya Kanijo. She also makes like really nice videos. Moving on to the next set of questions. S. Priya asks, which city or place did you like the most till date? I would say Himachal Pradesh for sure. It's my number 1. Then there was Pondicherry that I really enjoyed, and also it's special being my first solo trip. Then I also like Kanyakumari. The waters of that place was so good. And Kochi was really nice. I really like the historic charm of the place. Then there's Kanchipuram. I love visiting temples in Kanchipuram. That was really nice and it's so picturesque as well. These are the cities that I can think as of right now. Who is your camera person? I've already answered that question. Does your mom travel with you always? If I'm not traveling solo, yes, she is with me. Did you face any problem or mishaps while traveling? Yes, एक scam हुआ था मेरे साथ. How was Hyderabad city for you? Hyderabad was lovely. I mainly booked the Hyderabad trip because I wanted to visit Ramoji Film City. I had a great time in Ramoji Film City but also had a great time at Hyderabad also. City has so much to offer and the people are also so nice. So I really had a great time in Hyderabad as well. So yeah, these were all the questions. मुझे नहीं पता था इतने सारे questions आपको थे मेरे बारे में, but this was a very fun video to make as well. अगर आपके पास और भी कोई questions है तो उसे comments में लिख देना. I'll be happy to answer them all and let's chat in the comments down below. Thank you so much for watching this video. I really hope you enjoyed it and got to know me a little better today. Make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off. Until I meet you again in a new place, in a new city. Bye bye.